नाम एक बदनाम करेगा और बाकी पूरे मतलब पाकिस्तानी इसको ही बिल्कुल। समझेगा। एक शख्स की मैंने वीडियो देखी, शायद आप यकीन नहीं करेंगे, दूसरे कंट्रीज़ में जाके जो हरकतें होती हैं, दुबई में पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। अच्छा, भीख मांग रहे सड़कों पे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, मुझे दुबई में? हाँ, दुबई में। और तो यहाँ से तो लोग कहते हैं कि हम बिजनेस के लिए जा रहे हैं, करने जा वहाँ रहे पे हैं, लोग तो एक यही बंदा business है। तो वो बंदा वीडियो बना के कह रहा है कि मुझे आए 2-3 मिले। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं मर्जिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है चाइनीज मीडिया एंड पीपल लेफ्ट स्पीचलेस टू नो दैट एन इंडियन रिपोर्टर सुसाइड करते हैं। चीटिंग कर ली। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है चाइनीज मीडिया एंड पीपल लेफ्ट स्पीचलेस टू नो दैट एन इंडियन रिपोर्टर। आगे नहीं लिख रहा। हेलो गाइस, व्हाट्स अप। तो स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज का जो वीडियो है काफ़ी डिसेंट वीडियो है, 2 ही दिन पहले अपलोड किया है। एक चाइनीज़ यूट्यूबर ने जब अर्नब गोस्वामी की स्पीच जो जिसके बारे में बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है, लेकिन अभी हम इस वीडियो में दोबारा देखेंगे उसको। लेकिन वो जो है चाइनीज़ में ट्रांसलेट करके जब चाइनीज़ लोगों को दिखाया उस वीडियो को, तो आपको पता चलेगा कि मतलब चाइनीज़ लोगों के क्या रिएक्शन थे। और आपको डाउट होगा कि सच में चाइनीज़ ही ये कमेंट कर रहे हैं इंडिया के बारे में। लेकिन आपको बता दूं कि 100% ऑथेंटिक है और चाइनीज़ ही ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं इंडिया के बारे में। तो ये वीडियो हम देखेंगे और चाइनीज़ यूट्यूबर का क्या रिव्यू था वो भी हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले वीडियो देख लेते हैं और उसके बाद काफ़ी सारे कमेंट्स जो है मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और बहुत इंटरेस्टिंग है। कमेंट सेक्शन में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 大家好，欢迎收看这期节目，咱们直入主题，先看一个短片。 You lecture me as an American to an Indian on values. And Professor You say that Kapchan, this is about the West being weak. I don't Professor think so. Kapchan, allow me. What you're seeing is the West organize solidarity against No, Russia. no, 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 Two-thirds West- of the nations no, are no, no, coming no, no, together Professor- against Russia. Professor We're Kapchan. seeing serious sanctions Professor- against Russia. Yeah. Most of the world Now- is coming together now, against Professor- Russia. India should get off the fence. okay, now I'll tell you something, Professor Kapchan. And I hope that you will allow me a decent response, and then Ambassador Pawan Verma will respond to you. I see John wants to respond to you. First, I'd like to. First of all, with the greatest of respect, Professor Charles Kapchan, you have no moral standing to talk. You are in no position, you as in America is in no position to pretend to be the guardian of democracy and human rights. You are the worst perpetrator of atrocities. You, in Barack Obama in 2011, intervened in a nascent Libyan civil war, using the NATO and Arab League partners, prolonging the war for 1 decade. You launched armed conflict in at least 6 countries. Iraq, Syria, Yemen, Somalia, Niger. You carry out drone strikes. You've killed thousands with your drone strikes. You run Guantanamo Bay. But since I listened to you till you completed, you must listen to me. You must listen to me, sir. Sir, you must listen to me. You're dealing with India. We're a big country. We're not your satellite state. So don't lecture us on what we need to do. We are going to look out for yourself. You use the phrase geopolitical expediency in place of values. You lecture me as an American to an Indian on values, and you say that we are acting in geopolitical expediency. Allow me to complete. Allow me to complete, sir. Allow me to complete. Where were your values? Where were your values? Where were your values when in the first 2 months of the US invasion of Iraq, 7,186 Iraqi civilians were direct casualties of the war? Was that your expediency? Was that expression of your... हे मॉम, मेरा कहना है कि मैंने इंडियन ब्रदर्स को कभी इतना पसंद नहीं किया जितना मैं आज करता हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ जैसे किसी अमेरिकी प्रोफेसर या स्कॉलर को नाराज़ करना, क्योंकि वह एक प्रोफेसर और स्कॉलर है तो वो बहुत रीज़नेबल है और पावरफुल है और उसके कई रिलेशंस भी हैं, राइट? मतलब पूरी वीडियो का एडिटिंग प्रोसेस तो देखो। क्या लोगों ने ये जाना कि यूएस में इस प्रोफेसर को अभी भी प्रोफेसर कहा जा सकता है? जब आप छात्रों के सामने पोडियम पर खड़े होते हैं और बात करना शुरू करते हैं, तो क्या आप एक व्यक्ति के रूप में योग्य या अयोग्य महसूस करते हैं? अगर अमेरिकन वैल्यूज़ की बात करें, क्या आपने इस बात पर कभी विचार किया है कि अमेरिकन वैल्यूज़ ने दूसरे देशों में कितनी आपदा लाई है, राइट? बिल्कुल नहीं। अरे क्या आपके पास इराक और सीरिया को देखने का साहस है? तुमने क्या भयानक काम किया? क्या आप में इसका सामना करने की हिम्मत है?
और ये यूएस के पूर्व विदेश मंत्री किस तरह की चीज़ है। हाल ही में उनका निधन हो गया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि इसकी कीमत इराक में 5 लाख बच्चों के लॉस के बराबर थी। मैं सोच रहा हूँ, अगर आपके परिवार में कोई बच्चा है, क्या आप अपने बच्चों को बता सकते हैं कि तुम्हारी मौत इसके लायक है? वह ऐसा नहीं कहेगा, लेकिन वह इराकी बच्चों के सामने ऐसा कह सकता था। अब मानव स्वभाव कहाँ है? मैं इसे बिल्कुल नहीं देख सकता। और उनमें अभी भी ऐसे बहुत हैं बुद्धिहीन राजनेता जो अभी भी यूएस के बारे में अंधविश्वासी हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब आपके परिवार के अपने बच्चों को वही दुर्भाग्य भुगतना होगा, तो जब आप दोबारा बात करेंगे तो मैं आप पर विश्वास करूँगा, अन्यथा आप बिल्कुल विलन हैं। जहाँ तक चाइना का सवाल है, हम भारत को यूएस के साथ नहीं जाने दे सकते। ये वह लक्ष्य है जिसे हमें हासिल करना है, इसलिए भारत में हमारी प्रगति का बहुत स्वागत है। हमारे विदेश मंत्री अब उसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए इंडिया गए हैं। इसका मतलब है कि जब भी संभव होगा, हम चाइना और इंडिया के बीच के संबंधों को करीब लाएंगे और इंडिया को कभी भी यूएस के पास नहीं जाने देंगे। यदि इंडिया यूएस के अधीन आता है तो यूएस बेईमान होगा। जब रशिया की रियासत बड़ी मदद नहीं कर पाती है, तो वे चाइना को नियंत्रण करने के लिए यूरोप को लामबंद करना शुरू कर देगा। हो सकता है कि इस समय आशियन दबाव ना झेल पाए, इसलिए यूएस की रशिया के समान चाइना के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की बहुत बड़ी संभावना है। दूसरे शब्दों में, इसलिए हम इंडिया को बहुत विनम्र लगते हैं। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में संसद के निचले संसद के अध्यक्ष ने इस बार एक और रिफ्लेक्शन प्लान रद्द कर दिया। उन्होंने रद्द क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता है कि वे रशिया पर प्रतिबंध लगाने की यूएस की योजना का पालन करने के लिए भारत को राजी नहीं कर सकते। वे भारत को मनाने में असमर्थ थे। वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था और इसलिए ब्रिटेन ने ही यात्रा रद्द कर दी। और फिर चाइना के विदेश मंत्री योजना के अनुसार इंडिया पहुँचे और हमारी यात्रा शुरू की। इसलिए इस संबंध में मैं जो बात व्यक्त करना चाहता हूँ वह यह है कि जब तक हम इसे अच्छी तरह से संभालते हैं, तब तक इंडिया के यूएस में पूर्ण रूप से स्थानांतरित होने की संभावना लगभग 0 है। तो सबसे पहले एना चेन ने लिखा है कि इंडियन लोग ये डिबेट देख के बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे और जर्नलिज्म की ऐसी हाई क्वालिटी ने चाइनीज लोगों का भी दिल जीत लिया। आई लाइक दिस होस्ट सो मच। उन्होंने जो बोला वो दुनिया के 90% लोगों की दिल की बात है। उसके बाद काइचक चुन ने लिखा है कि किसी भी चाइनीज टीवी होस्ट में इतना ऑडेसिटी, करेज और राइटियसनेस नहीं है। इन शॉर्ट अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो किसी भी चाइनीज रिपोर्टर के में उतना दम नहीं कि वो यूएसए को उसके मुंह पे रख के झाड़ दे। एक देश का मीडिया ही उसका बैकबोन होता है और इंडिया के पास वो है। उसके बाद किनवाई एनजी ने लिखा है कि ये बहुत रेयर है जब किसी रिपोर्टर को ऐसे खुलेआम क्लियर कट फैक्ट्स बताते देख रहा हूँ। कोई मुझे कुछ भी कहे, आई हैव टू गिव अ थम्स अप टू दिस वीडियो। ही हैज इंडीड स्पोकन द ट्रूथ। उन्होंने वो सच कहा जो कि मेजॉरिटी देश कहना चाहते हैं, जिन्होंने इन इंपेरियलिस्ट यूएसए के हाथों सफर किया है। उसके बाद सी नाइचुन ने लिखा है कि आज मैंने ये डिबेट देखा और इसको मैंने काफी एंजॉय भी किया। अब तो मुझे इंडिया बहुत पसंद आने लगा है। उसके बाद एम क्वीन ने लिखा है कि ये सच में अनबियरेबल है कि अमेरिकन्स हमेशा खुद को मॉरल हाई ग्राउंड्स में रखते हैं और दूसरों को क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि उन्होंने ऐसा या फिर इससे भी कई ज़्यादा बदतर चीज़ें की ना हो। और हालांकि इस इंडियन होस्ट ने इतने सारे एविडेंसेस दिखाए, लेकिन फिर भी इन अमेरिकन स्कॉलर्स की बेशर्मी तो देखो, वो फिर भी रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं। उसके बाद लीन वॉल्टर ने लिखा है कि इंडिया इज़ फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और चाइना को इससे सीखना चाहिए। होस्ट ने बिल्कुल वही कहा जो उसके दिल में था। थैंक्स कि इंडिया की जो पोजीशन है रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेके, वो इंडिया ने खुद तय किया है और रशिया के साथ उनकी रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रांग है। उसके बाद ऑड्रे ने लिखा है कि इंडिया ने तो हमारी आंखें ही खोल दी। एक तरफ जहां पूरी दुनिया यूनाइटेड स्टेट्स के सामने झुकी हुई है और उनके इशारों पे चल रहे हैं, दूसरी तरफ इंडियन होस्ट ने खुलेआम सारे टिपिकल और क्लासिक यूएसए के क्राइम्स को उनके सामने गिनवा दिया और उनकी पोल खोल के रख दी। इंडिया हैज सच अमेजिंग पीपल। इंडिया सच में एक बड़ा और ताकतवर देश है। उसके बाद मेलिस ने लिखा है कि हम सारे चाइनीज दिल की गहराई से इस होस्ट को एक बड़ा सा लाइक देते हैं। उसके बाद आई एम ब्रदर जियान ने लिखा है कि देयर इज अ रीजन कि इंडियंस को बहादुर कहा जाता है। आई अपलॉड हिम। उसके बाद लेजी ने लिखा है कि इनको सुनने के बाद आई एम स्पीचलेस। हमारे देश के सो कॉल्ड स्कॉलर्स तो अमेरिका के सामने अपना मुंह भी ठीक से खोल नहीं पाते। उसके बाद फनी चैन ने लिखा है कि इट्स बेटर टू बी अ कंट्री जिसका एक बैकबोन हो और जो स्वतंत्र हो, इंस्टेड ऑफ बीइंग अ फकिंग स्लेव। लॉन्ग लिव इंडिया। उसके बाद डायरेक्टर तियान ने लिखा है कि टू बी ऑनेस्ट, इंडिया एक ऐसा देश है जिसकी एक बहुत लंबी हिस्ट्री है और इसीलिए इंडिया बहुत एक्सपीरियंस्ड है सही और गलत को परखने में, विच मेक्स मी ऑस्ट्रक। अच्छे प्रिंसिपल्स को अपनाना तो आसान है, लेकिन उसको कंटिन्यू रखना बहुत मुश्किल है और इंडिया ने वो कर दिखाया है। उसके बाद ई चू ने लिखा है कि इंडिया एक ऐसा ताकतवर देश है कि उसके पड़ोसी देश उससे डरते हैं
लेकिन अगर हम इंडिया और रशिया के दोस्ती के बारे में बात करें तो दोनों ऐसे देश हैं जिन्होंने कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। These two brothers deserves all the praises। इन दोनों भाइयों को दिल से रिस्पेक्ट है। उसके बाद ईसाया ने लिखा है कि इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत सेंसिबल है और इसका एग्जाम्पल और भी एक बार इस होस्ट को देख के मिला। ही स्पीक्स रैशनली विथ नो रिस्ट्रेंट्स। अब बताओ चाइना में कितने ऐसे दलेर लोग होंगे जो ऐसा कर सकते हैं? शायद कोई भी नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उनका ही कमेंट का एक हिस्सा है जो उन्होंने कहा। उसके बाद क्विंग फेंग सियाओ ने लिखा है कि ज़रा हमारे देश के रिपोर्टर्स को तो देखो, ऐसा लगता है कि जैसे कॉन्स्टिपेशन हो रखा है, मुँह ही नहीं खुलता। दिस इंडियन होस्ट रियली हिट द नेल ऑन द हेड और अमेरिकन्स की बोलती बंद कर दी। तो दोस्तों आज मैं कमेंट का सिलसिला यहीं पे ख़त्म करूँगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय। ओके जनाब, बहुत ही बहादुरी का काम, बहुत बहादुरी। बिल्कुल। अच्छा, मैं जो हूँ चाइना को एक बहुत बड़ी ताकत समझता था। ठीक है, हाँ, इस वीडियो से पहले इस वीडियो से पहले मुझे अब लगा कि चाइना का भी इंडिया के आगे चूचू का मुरब्बा है। बिल्कुल। मतलब वहाँ उनकी इतना ताकतवर कंट्री होते हुए भी अमेरिका के आगे, यानी कि उनकी सराहत नहीं रखता। जब भी उन्हें इस एंकर के इस तरह से दबंग स्टाइल में मुंह तोड़ जवाब देने वाला पसंद आया। देखा था जब वो बोल रहे थे तो मुझे तो 2 मिनट में लगा फाइट चल रही होगी। बिल्कुल, अपने जज्बात देखे थे। अच्छा, मजे की बात है वो जो बोल रहे थे वो अपने इंडिया के लिए नहीं बोल रहे थे। ये भी आप नोट करें कि आप दुनिया के लिए लड़ रहे हो। दुनिया के लिए लड़ रहे हो और ऐसे नहीं हवा से लड़ रहे हो, एविडेंस दिखा रहे हैं, चीज़ें बता रहे हैं, हर चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं। उसके बावजूद उनकी ढिठाई, उनकी मैं ये कहूँगी एक इतने वो मतलब एक सफाक लोग हैं, या मैं ये कहूँगी इतने ढीठ लोग हैं, उनके ऊपर असर ही नहीं होता कि वो उसके बावजूद भी लड़ रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। मैं हैरान, मैं बहुत हैरान। हमने एक पिछली वीडियो में देखा था जिसमें प्रशांत भैया ने कहा था कि अमेरिका का एक रहा है अपना मतलब है कि असर और दबदबा दिखाने का, और जो उनकी नहीं सुनता, जो हुकूमत उनकी नहीं सुनती, तो उन्हें किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटा देते हैं। अच्छा, वही तरीक़ेकार है कि हर कंट्री इनकी सुने, पूरी दुनिया में इसका एक दबदबा रहे, उसके लिए पैसा बहा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात कि अमेरिका को आईना दिखाया। ठीक है। अच्छा, एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे वो, मतलब एक लाइव वो चल रही थी। तो उसमें मतलब है कि कोई एम ही चलता फिरता बंदा तो हो नहीं सकते। ठीक है, तो एक बहुत बड़े प्रोफेसर को इस तरीके, अच्छा एक होता है बताना, एक होता है स्टाइल, एटीट्यूड, एक होता है ना कि धमकी देना या एक टाइट कर देना, जैसे को तैसा देना, अलाउ मी टू कंप्लीट। आपने देखा था, यानी कि वो ये कह रहे थे कि आप मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए। और मैं इस बात पे वाकई हैरान हूँ कि मैं ये समझती थी कि हर कंट्री तरक्की करता है, इकनॉमी अच्छी हो उसकी, ज़्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री हो, फिर काफ़ी तरक्की याफ्ता हो, लोगों से लेन देन तिजारत हो, उसकी ट्रेड हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, तो ये कंट्री बहुत पावरफुल होता था मेरी नज़र में। लेकिन मैंने देखा कि चाइना में ये सारी चीज़ें हैं, उसके बावजूद भी चाइना कुछ भी नहीं है। इनके सामने यूएस के सामने की बोलने की हिम्मत या उनके सामने खड़े होने की हिम्मत अभी भी चाइनीज़ अवाम में या चाइना के लोगों में नहीं है, उनके स्कॉलर्स या उनके एंकर्स में नहीं है। जबकि अगर हम ऑन द अदर हैंड इंडिया को देखें तो मैं ये कहूँगी कि इनके स्कॉलर्स, इनके एंकर पर्सन इतना रोब, इतना दबदबा, इतनी हिम्मत रखते हैं, इतने दलेर हैं कि वो आंखों में आंखें डालकर बोल सकते हैं, जवाब दे सकते हैं यूएसए को। बहुत बड़ी बात है। और इनके जिस तरीके से कमेंट्स आए थे वो पूरी एक चाइना की अक्कासी करते हैं, वो चाइना वालों की सोच बताते हैं कि हमें इंडिया की मतलब एक मतलब रिस्पेक्ट हमारी नज़र में बढ़ गई। अच्छा, चाइना इत्तफाक ये देखें कि चाइना वो कंट्री है जिसकी इंडिया से नहीं बनती, मतलब इत्तफाक देखें। और लेकिन उसके बावजूद वो बिल्कुल शैदाई हो गए उनके। अच्छा, 2 चीज़ें मुझे इन फ्यूचर दिख रही हैं, मतलब जो पूरी इंटरनेशनल रिलेशन हम आजकल देखते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो मुझे 2 चीज़ें मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया को ये जो यूक्रेन वाली वॉर ख़त्म होगी ना, दुनिया के हालात चेंज होंगे। सही। पूरी दुनिया में अमेरिका के कपड़े उतर चुके होंगे 100%। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी, इस पूरे मामले में, अमेरिका वाले मामले में अमेरिका की वैल्यू बहुत घटेगी, उसका वो नहीं होगा। दूसरी तरफ इंडिया की वैल्यू बढ़ेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो शायद
हम लोग देखते थे, हम लोग सोचते थे 2050 में, 2040 में, वो अभी ही हमें देखने को मिल जाएगा। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो टाइम पीरियड है ना, शायद वो तेज़ी से ऊपर जाएगा और वो जो अमेरिका वाला है वो तेज़ी से नीचे आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि ज़्यादातर देश नाराज़गी का इजहार करेंगे, ज़्यादातर देशों में बहुत बर्बरियत फैलाई इन्होंने, बहुत जंगें की, बहुत जुल्म किए, जैसे ये बता रहे थे। अब ये बातें, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप भी बोलेंगी कि एक शख्स अगर कोई पहल करता है, हिम्मत करता है ना, तो दूसरे में भी हिम्मत आती है, तीसरे में भी हिम्मत आती है। आज ये कर रहे हैं तो कल चाइना में भी कोई, चाइना मैंने देखा, उनके जो मिनिस्टर ने अभी दौरा करा था, उन्होंने बता दिया कि इसके पीछे का जो मकसद था वो भी यही था। चाइना चाहता है इंडिया उसके साथ रहे और उसका गोल है, उसका एक टास्क है, उसका एक लक्ष्य है कि वो इंडिया को नहीं चाहता कि वो यूएस के फेवर में जाए, यूएस के ब्लॉक में जाए। वो चाहता है कि इंडिया हमारी तरफ ही रहे, चाइना की तरफ रहे। और उसके लिए उसने कह भी डाला, आपने देखा कि उनके जो चाइनीज़ पर्सन थे वो ये कह भी रहे थे कि हमें उसके लिए जो भी करना पड़े, जिस हद तक भी जाना पड़े, जितनी भी कोशिशें करना पड़े, जितनी भी एफर्ट्स डालना पड़े, हम डालेंगे, लेकिन हम कतई नहीं चाहते कि इंडिया यूएस के फेवर में जाए। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैन चाइना नहीं है, मैन इंडिया है। बिल्कुल, ठीक है ना। बिल्कुल। इंडिया जैसे चलेगा, मुझे लगता है उसी राह पे गामसन होगा फिर चाइना इंडिया को फॉलो करके चलना चाहता है। और चाइना नहीं चाहता, कतई नहीं चाहता कि इंडिया कभी भी किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न की वजह से यूएस के फेवर में जाए। और ये जो स्पीच हुई है या ये जो एंकर पर्सन ने, अच्छा मैं एक चीज़ और सोच रही हूँ, इनके मिनिस्टर्स क्या होंगे, मोदी जी क्या बात करते होंगे, मोदी जी कैसे करते होंगे, ये दूसरे मिनिस्टर्स क्या करते होंगे, इनके एमपीज़ कैसे बात करते होंगे, कैसे ट्रीट करते होंगे इन लोगों को। जब एक आम सा मेरी भले ही उनकी बहुत अच्छी प्रोफाइल होगी, लेकिन देखा जाए तो एक एंकर पर्सन है, वो एंकर पर्सन इतना बहादुर, इतना दलेर, इतना ब्रेव है कि वो उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको जवाब दे रहा है। एक मैं ये कहूँगी एक आम नागरिक जवाब दे सकता है उनको। उनके लिए ये यूएस मुझे ऐसा लगता है कि वो उन्होंने वो एक हैंगओवर, एक यूएस का वो जो एक वो है ना, एक उनका जो इमेज है, जो इनका एक स्टेटस है, जो उनका एक स्टैंडर्ड है, उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो उनके मातहत कभी आए नहीं, कभी उनको ये नहीं समझा कि ये तो बहुत आला व अरफा है और हम इनके सामने कुछ भी नहीं। वो इनके सामने डटकर खड़े होते हैं और मुझे ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगी इंडियंस की। अब इन फ्यूचर आप ये भी देखेंगी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ख़ुद अमेरिका में भी, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत पढ़ी लिखी कौम है, अमेरिका में भी इस चीज़ के ख़िलाफ़ एहतजाज होंगे। आप अपनी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ वो खड़े होंगे। अच्छा, चाइनीज़ जो पीपल हैं वो इस तरीके से जब कमेंट करें, इतना लव दिखा रहे हैं इंडिया के प्रति और उनके एंकर पर्सन की इतनी मतलब वाहवाही कर रहे हैं, इतनी तारीफ़ें कर रहे हैं, बिग फ़ैन कह रहे हैं, और ऐसा पर्सन नहीं देखा हमने। इंडियंस तो होते ही बात, अच्छा कहा सिर्फ इन्होंने, लेकिन आपने देखा पूरी कौम की बात हो रही है। इंडियंस तो होते ही दलेर और बहादुर हैं, बड़ी बात। और उसका एक हमें एक नमूना भी देखने को मिल गया। असल में जो रिप्रेजेंट करते हैं किसी को, वो इसी तरह के लोग करते हैं। एंकर पर्सन हैं या जो बाहर कंट्री में जाते हैं, विजिट के लिए जाते हैं, एक बंदा जाता है, उसका पॉइंट, उस पूरी कंट्री को उस पॉइंट ऑफ से देखा जाता है। बिल्कुल, उसका इम्पैक्ट। अच्छा, एंकर हो गए, स्पोर्ट्स हो गया, खेल के मैदान हो गए, वो सारे लोग जब भी दूसरी दुनिया में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो लोग उन पूरे पाकिस्तान को, पूरे इंडिया को उस एक शख्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसलिए तो कहते हैं कि किसी भी कंट्री में जाओ तो वो हरकतें ना करो, वो चीज़ें ना करो कि आपका मुल्क का नाम बदनाम करेगा और बाकी पूरे मतलब पाकिस्तानी इसको ही बिल्कुल। एक शख्स की मैंने वीडियो देखी, शायद आप यकीन नहीं करेंगे, दूसरे कंट्रीज़ में जाके जो हरकतें होती हैं, दुबई में पाकिस्तानी भीख मांगते हैं। अच्छा, भीख मांग रहे सड़कों पे, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ प्रॉब्लम हो गई, मुझे दुबई में। दुबई में। और तो यहाँ से तो लोग कहते हैं कि हम बिजनेस के लिए जा रहे हैं, वहाँ पे लोग तो एक बंदा, तो वो बंदा वीडियो बना के कह रहा है कि मुझे आए 2-3 मिले, मुझे मिले, बोला मैं ज़रूरत है हमें इतने पैसों की। बोला पहली तो चीज़ है कि यहाँ ये अलाउ नहीं है, पुलिस पकड़ लेगी तो आपको ले जाएगी। तो फिर भी वो कर रहे हैं, तो जान पे खेल कर। अच्छा, बोला आप ये भीख मांग रहे हो, सबसे पहले तो आप ये गलत कर रहे हो, इल्लीगल है यहाँ पे, आप मांग रहे हो, पुलिस आपको पकड़ लेगी। दूसरी चीज़ है कि आप दुबई में भी आके भीख मांग रहे हो, तो आप पाकिस्तान में नहीं, तो आप कहीं भी क्या करोगे फिर? मतलब आप दुबई आके भी, वो भी है, लेकिन इतना खर्चा करा तो वो काम तो वही करना था। बड़ी भीख, वो अमीर लोग आते हैं। अच्छा, रियाल मिलेंगे। हाँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो कह रहा है कि दुबई एक गढ़ है काम का, दुनिया जॉब के लिए जाती है, काम के लिए जाती है। जितनी डिटेल में मैंने नहीं सोचा था।
कि मैंने बोला भीख तो यहाँ पे भी मिलेगी, हमारे भी तो फकीर कार्ड्स में आ रहे होते हैं। यहाँ तो 10 रुपये दे। तो आप बता तो नहीं थे, वो बस दिखावे के होते हैं। मतलब वहाँ पर अच्छा हो सकता है कि वो वहाँ कोई जॉब कर रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम ये कर रहे हो। अच्छा, ये पार्ट टाइम जॉब था। हाँ, हो सकता है। तो फिर वो शख्स कह रहा है कि भाई मैं दुबई में इनसे मिल लूँगा, इनको कोई धंधा बता दूंगा, क्या करो क्या नहीं करो, 5-6 लोग जमा करो जो इस तरह के धंधा कर रहे हैं, मुझे मिलवाओ, मुझे बुलाओ, मैं आऊँगा या वीडियो कॉल पे उन्हें समझा दूंगा कि भाई ये नहीं करो। बोला 5-6 लोग जमा कर लो जो परेशान है वहाँ पे। और बोला इतने परेशान हैं कि यार दुबई में भी भीख मांग रहे हैं। तो खैर मैं अब क्या बताऊँ मतलब कि अगर वो अगर भीख बर्बाद कर रहे हैं अगर कोई बंदा वहाँ भीख दे और कहे फ्रॉम वेयर, तो वहीं पर वहीं पर बस चुप हो जाने। अच्छा, पूरी कहानी सुना दी, तब सोचना चाहिए था। नहीं, मैं कह रहा हूँ वो ना बताए पाकिस्तान, तो बांग्लादेश बता दे, कुछ और बता दे। गलत बात है ना। अच्छा, फ़ख्र से पाकिस्तान बता। फ्रॉम पाकिस्तान। खैर दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो, दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।